Assalamualaikum everyone. My name is Kaval Mehdeen and I am a final year software engineering student from NUST. So basically, it's a seminar that we are organizing on behalf of FEMCodes. FEMCodes is a non-profit organization to promote female career opportunities in digital empowerment and STEM. But a lot of people were showing interest. So जो हमारे scholarship sessions होते हैं, they're open for everyone. So this scholarship session is focused towards the Google Summer of Code. You must have heard about it. Or although the applications are not open yet, but I wanted कि seminar अभी हो जाए, so you have enough time to prepare for your proposals. And we have two amazing guest speakers, Musab and Ahmed. They are the past recipients of the Google Summer of Codes internship or scholarship. So I think that's it from my side. I'll now hand over the presentation to Musab and he'll guide you from here onwards. Over to you, Musab. Okay. So my name is Musab Imran. I'm a student developer at Google Summer of Code. So 2023 के अंदर like last year मैंने Google Summer of Code में participate किया था for the organization was Summity जिसके अंदर pen testing और web security मेरा focus था क्योंकि I'm doing my bachelor's in cyber security from FAST and it's my senior year. तो 4 माह रह गए हैं बस यूनिवर्सिटी भी मेरी जो है ना ख़त्म हो रही है तो ये मगर मैंने when I applied I had just completed my 6th semester तब और अब मैं 8th में हूँ. So these are my LinkedIn and GitHub handles if you want to look more into it. So the idea is I just don't want to bore you guys मगर I want to have a fresh start कि मतलब शुरू से हम एक पेज पे हों. So what's like in open source? ओपन सोर्स के जो बेसिक लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स मगर जो एक बेसिक आइडिया वो ये है कि जो सोर्स कोड है ना वो जो आपका कोड है जो भी सॉफ्टवेयर का आपका कोड है वो इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन जो ओपन सोर्स लाइसेंस के अंदर है एंड एवरीवन इज एबल टू चेंज स्टडी इम्प्रूव or whatever they want to do it. So it's distributed among multiple collaborators and developers. So this is what open source is. So अब open source के GSoC में link ये है कि GSoC Google Summer of Code is actually which promotes open source के open source में लोग हो रहे हैं क्योंकि आप देखें कि open source की ज़रूरत क्यों है क्योंकि अगर देखें जैसे open source के इतने softwares हम लोग use करते हैं. For instance, if I talk about my field, तो there are like zillions of tool cyber security के जो कि open source हैं जो कि available हैं सबके लिए. तो अगर हम open source में contribution नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे पास tools हैं और जितने भी हमारे पास मतलब softwares हैं वो सारे proprietary हो जाएंगे और जो कि अभी हैं भी सही. तो proprietary में ये होगा कि आपको पे करना पड़ेगा. तो it's like promoting an open source thing. I think it's very essential at this point. So Google Summer of Code is actually promoting open source contribution और जो है ना उसके अब GSoC में होता क्या है GSoC के अंदर you have like time frames और projects होते हैं आपके पास. तो आपके पास small size projects होते हैं जो कि इसी साल इंट्रोड्यूस हुए हैं. मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स होते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं. जो आपके पास स्मॉल साइज है उसके लिए आपको 90 आवर डेडिकेट करने पड़ते हैं, मीडियम के लिए 175 और जो लार्जर हैं 350. अब इसके अंदर होता ये है कि जो 90 आवर प्रोजेक्ट है उसके लिए $750 आपको पे किया जाता है. जो आपके पास 175 आवर प्रोजेक्ट है that's almost $1,500 and जो large projects and that's $3,000. So if you think about in terms of money तो काफी अच्छा है because हम पाकिस्तान में रहते हैं. So because of the currency shift जो आपके currency exchange की वजह से काफी अच्छी amount बन जाती है. तो जो प्रोजेक्ट का काम है वो ऑलमोस्ट 12 वीक्स आपने करना है. अब जो है 12 वीक्स को आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपका बाद में लाइक दैट इज समथिंग व्हिच यू डिस्कस आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड. तो GSoC के मेन गोल्स क्या हैं? GSoC के 3 मेन गोल्स ये हैं कि सबसे पहले तो ओपन सोर्स कम्युनिटी को हम प्रमोट करें और कंट्रीब्यूटर्स को बताएं कि ओपन सोर्स कम्युनिटी है क्या और इसमें क्यों काम करना चाहिए. उसके बाद हेल्प करें ओपन सोर्स को जो है डेवलपर्स के वो आपस में कम्युनिटी में मतलब एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाए और जो है ना लोग कंटिन्यूस जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट और कंट्रीब्यूशन शो करें. और जो है ना ऑब्वियसली टेस्टिंग और ये सारा कुछ इस सारे से आपकी इतनी इमेंस लर्निंग होती है GSoC में बिकॉज बीइंग पार्ट ऑफ इट आप वो इंटेंसिव किस्म के ओपन सोर्स कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं तो आपको सारी आपकी मिस्टेक्स पता चल रही होती हैं. आपको पता चल रहा होता है कि असल में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्योंकि देयर इज दिस ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज एंड व्हाट इज बीइंग एक्चुअली डन इन द इंडस्ट्री. सो उस गैप को पूरा करने के लिए आई थिंक इट्स वेरी गुड
कि एक आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर अब्रॉड, लाइक वो बाहर की हैं, तो इट्स लाइक यू आर वर्किंग विद क्रॉस कल्चरल पीपल, यू आर वर्किंग विद different races, and you're working with obviously English के अंदर आप communication and everything you're doing it, so it's a wholesome learning. So how does actually GSoC work? GSoC में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी एप्लीकेशन गूगल समर ऑफ कोड की ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं कि हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। वो कंपनीज GSoC के साथ रजिस्टर हो जाती हैं, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपने 10 मतलब डिपेंड्स, वो अपने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स वो समर के अंदर करना चाहते हैं, वो लिस्ट शेयर कर देते हैं। उसके बाद मल्टीपल मेंटर्स होते हैं, मेंटर्स अप्लाई करते हैं फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो करना चाहते हैं। कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो कि मेंटर्स आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं विद ईच कंट्रीब्यूटर, व्हिच हेल्प्स यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस। फिर उसके बाद जो असल हमारा कंसर्न इस टाइम पे वो है कंट्रीब्यूटर। तो हमने एज अ कंट्रीब्यूटर जो है ना अपना प्रपोजल सबमिट कराना होता है। अच्छा, हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है? हमारा स्टेप ये होता है कि हम अपनी, जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय फील्ड, तो मेरी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है। सो व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज, तो मैंने सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग और इस तरह के वर्ड्स जो है ना कीवर्ड सर्च किए। उसके बाद मुझे वो ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स मैंने लिस्ट डाउन कर लिए, और उसके बाद मैंने प्रपोजल्स लिखे उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, और अपने प्रपोजल्स भेजे कि ये प्रॉब्लम को मैं इस तरह अप्रोच करूंगा, एंड ऑल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वे। तो ये थ्रू आउट आपका प्रोसेस होता है। फिर आपके साथ एक मेंटर अटैच हो जाता है जो कि हु हेल्प्स यू, और हु हेल्प्स यू एक्चुअली अलोंग द वे। और एक मेंटर के मतलब काफी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके अंदर, सो एक होलसम लर्निंग होती है, आपको इंस्टेंट फीडबैक्स मिल रहे होते हैं एवरीथिंग। तो दो इवेल्युएशंस होती हैं आपकी, एक मिड इवेल्युएशन होती है जिसमें आपको 50% ऑफ द ऑलमोस्ट 45% ऑफ द जो आपकी अमाउंट होती है वो आपको मिल जाती है इफ यू पास द फर्स्ट इवेल्युएशन, एंड आफ्टर पासिंग द सेकंड इवेल्युएशन यू गेट योर 55% ऑफ द अमाउंट जो आपकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सेट हुई हुई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू आर 18 अबव, यूर बिगनर कंट्रीब्यूटर टू द ओपन सोर्स कम्युनिटी, आपने सिर्फ एक दफा पहले किया हो, क्योंकि आप GSoC सिर्फ 2 दफा कर सकते हैं इन योर लाइफ टाइम। एंड ये इस तरह कि मतलब आप जो है ना उस कंट्री, आप उस कंट्री, जो कंट्री आप जिसमें आप काम करें वो एलिजिबल भी है कि नहीं फॉर GSoC। तो उसके बाद आपके पास प्रोग्राम टाइमलाइन है, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है हमारी कि जो है ना वो हमारी 1 जो हम लोगों ने देखनी है, सॉरी 18 देखनी है, जहाँ पे हमारे कंट्रीब्यूटर्स जो है ना, क्योंकि अभी हमारी 6 तक जो है ना, हमारी 21 तक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनाउंस हो जाएंगी कि कौन कौन सी है। तो उसके बाद 18 से अब 21 टिल 18 आपने रिसर्च करनी है ऑर्गेनाइजेशंस पे, और 18 टिल 2 काफी छोटा टाइम पीरियड है। तो इस दौरान आपने जो है ना अपने प्रपोजल्स भेजने हैं, और आपको 1 को पता चल जाएगा कि जो सिलेक्टेड है। फिर आपका 27 ऑनवर्ड्स आपका कंट्रीब्यूशन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। Some facts about GSoC: 20,000 plus participants होते हैं, 116 countries, mentors भी over 20,000, almost like 19,000 above हैं। और जो है almost जो अच्छी बात GSoC की है कि एक इतनी sense of learning है, आप इतने conducive और इतने अच्छे environment में हैं, you're learning so much, क्योंकि आपके 1-to-1 correspondence with your mentors, और एक ओपन, क्योंकि आपने at the end of the day degrees and everything you have to go into the जो जॉब मार्केट है, तो इसलिए उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सेंस ऑफ प्रिपरेशन होती है। These are some useful links you can view, जो कि आप यूज कर सकते हैं। So if I talk about, I hope my screen is visible. So if I talk about my proposal, what I want to say is कि हमारी लाइफ के अंदर मैं आपको अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो मेरा दोस्त है एक उस्मान, उसने अप्लाई किया था गूगल समर ऑफ कोड में when he was in 4th semester। हम कहते हैं कि आखिरी सेमेस्टर्स के लिए वेट करना चाहिए, आई थिंक आपको पहले करना चाहिए। और उस टाइम उसे सिर्फ C++ आती थी, और उसने सिर्फ C++ की बेसिस पे उसको GSoC उसका क्लियर हुआ था। और उसने फिर हम लोगों में इतनी अवेयरनेस क्रिएट की थी, हमारे जितने भी क्लास वाले हैं आगे पीछे, तो हम में से भी फिर हम लोगों ने GSoC दिया, और अब हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में इट्स सच अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, लोग इतने मतलब इतने उससे इतने एंथुजियास्टिकली इसमें अप्लाई करते हैं, और लोगों को भी बताते हैं। तो पाकिस्तान में मैंने नोट किया ये चीज़, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी
मतलब which is being promoted by people. So I think it's a very great opportunity और आपको अप्लाई करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए. तो द असल पॉइंट इज द मोटिवेशन कि जो है कि हमने ये अप्लाई करना है और हमने सेलेक्ट होना है, क्योंकि इंडिया में इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 100 लोग जो सेलेक्ट होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और पाकिस्तान में ये रेशो इतनी कम है जो कि अनफॉर्चुनेट है. मगर ये है कि आई थिंक आई हैव सीन प्रोग्रेस, बट मगर ये है कि इसको टाइम लगेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट माय प्रपोजल, मैं अपने प्रपोजल की बात करूं, ओवैस को तो सबको पता ही होगा. सो इट्स अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरा तो ड्रीम था कि ओवैस में मैं काम करूं, मगर द पॉइंट इज वहां पे मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा इंडियंस वर डूइंग पुल रिक्वेस्ट, और मतलब मल्टीपल, इफ आई नॉट इवन टॉक अबाउट इंडियंस इन जनरल, लोग इतनी पुल रिक्वेस्ट कर रहे थे, दे वर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. मेरा फर्स्ट टाइम था, सो आई थॉट कि मुझे एक साल आई शुड वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेस कंपेटिटिव हो, या लेस कंपेटिटिव से मुराद ये है कि मतलब उनका प्रोजेक्ट इज वेरी स्पेसिफिक टू माय डोमेन, तो वो हो, और मुझे एक एक्सपीरियंस आ जाए, ताकि अगले साल मैं जब दोबारा अप्लाई करूँ, इस साल मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा, तो मैं ओवैस्प के लिए कर सकूँ, बिकॉज दैट वाज माय टारगेट. सो व्हाट आई वांट टू शो इज कि अब तो जीपीटी का जमाना है, तो एवरीबडी यूजेस जीपीटी, बट एक सेंस ऑफ यूजेज भी होती है. तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह बताना चाहूंगा. जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी समिटी, तो उनका ना 3 से 3.5 घंटे सेटअप में लगते थे. तो मैंने कहा, मैंने 2 प्रपोजल सबमिट करा दिए थे, आखिरी मेरा प्रपोजल रहता था, और उसी दिन रात 12 बजे सबमिशन भी थी इसकी. तो मैंने कहा चलो एक तीसरा प्रपोजल भी लिख लेते हैं. मैंने जो है ना सेटअप, और जुम्मे का दिन था, तो मैंने सेटअप लगाया और मैं जुम्मे पे चला गया. 2-3 घंटे बाद जब मैं वापस आया घर, तो वो सेटअप हुआ हुआ था. तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसके बाद मैंने एक टूल रन किया उनकी वेबसाइट के ऊपर, जिससे मुझे मल्टीपल वनरेबिलिटीज उनकी नजर आ गई. तो वो वनरेबिलिटी मैंने उनमें से कुछ का मुझे आइडिया था, कुछ का नहीं था. तो मैंने वो चैट जीपीटी को दी कि ये वनरेबिलिटीज हैं, लाइक हाउ कैन आई सिक्योर इट. तो वो मुझे वनरेबिलिटी मिल गई, और मैंने उसको उनको बता भी दिया, और मैंने सिर्फ एक वनरेबिलिटी जो मेरी निकली थी वो मैंने अपने प्रपोजल में बताई थी, और मैंने इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं किया. द पॉइंट आई एम टेलिंग इज कि क्वालिटी जो है ना, इट्स क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, इट व्हाट एक्चुअली मैटर्स. कि एक वनरेबिलिटी, इतने लोगों ने अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे अपने प्रपोजल्स भी दिखाए, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हम इस तरह कर लेंगे, हम इस तरह कर लेंगे, बट आई एक्चुअली व्हाट मेड माय एप्लीकेशन to stand out was actually me going an extra mile for doing the setup as well as finding the vulnerability, और उनको बताना कि हाँ ये इस तरह सॉल्व होगी. सो आई थिंक, और ये मेरे मेंटोर ने भी मुझे कहा था कि which was actually the reason for me, for my application to stand, for my proposal to actually stand out from others. सो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी पे फोकस करें, अच्छी पीयर्स मतलब करें, और पुल रिक्वेस्ट करें, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन कांटेक्ट रहें, उनसे पूछते रहें कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, राइट गुड प्रपोजल्स, और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हो उस प्रपोजल में. ये नहीं कि बस हम इस तरह कर लेंगे, और इट शुडंट बी लाइक वेग एंड स्टफ. तो मैंने देखा है मेरे दोस्तों ने लाइक सिर्फ वो उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को जीपीटी पे दिया और प्रपोजल लिख के सबमिट करा दिया, विच इज़ नॉट अ गुड वे, बिकॉज वो ऑब्वियसली एआई का पता चल जाता है. तो ये चीज़ है. और जो आखिरी चीज़, जो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मैं क्रिएट करना चाहूँगा आप लोगों में, वो ये है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे समहाउ मोस्ट ऑफ, आई थिंक फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस, पैसा जो है ना, इट्स मनी इज सच अ ड्राइविंग फोर्स फॉर अस. So I think the amount you get from GSoC, I received $3,000. Back then, dollar was 300 rupees. So I got actually almost like 9 lakh. So being a 21, 22-year-old person, or you get 9 lakh out of like nowhere. So it's such a huge motivation in terms के मैं उस टाइम पे नया लैपटॉप लेने का सोच रहा था, and I was so scared of, I wasn't like scared, और मगर मैं ये था कि मैं क्या अम्मी अब्बू को बोलूंगा कि मुझे लैपटॉप लेके दें, ये तो वो जब वो पैसे आए, तो मैंने अपने पैसों से लैपटॉप लिया. तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है आपको, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में इतना मेंटली वो फील कर रहे होते हैं कि हम इतने, वी आर नॉट गुड इनफ और समथिंग लाइक दैट. सो वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, रीअश्योरेंस होती है कि नहीं आप भी कुछ हैं. और आई वाज प्लानिंग ऑन गोइंग ऑन उम्रा, सो उसके लिए भी पैसे नहीं थे. तो जी सॉक की वजह से वो भी एक जो है, मतलब आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो उसी पैसे से. सो आई थिंक इट्स, और मैंने बाय यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना था, तो उनकी भी फीस होती है. यू गो टू द जो कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी भी फीस होती है. तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुझे दी है फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, वो जी सॉक की वजह से है.
तो आई वुड प्रॉबेबली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, आपको अपने पे ट्रस्ट होता है कि यू कैन डू इट, और बीइंग सिलेक्टेड फॉर GSoC इज नो जोक। तो वो भी आपको होता है कि अच्छा हाँ, इतने एप्लीकेशंस में मैं भी सिलेक्ट हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो एक ड्राइविंग फोर्स ऑब्वियसली है ही है। तो आई वुड प्रोबेबली रिकमेंड कि आप लोग लाजमी अप्लाई करें और लोगों को भी बताएं कि वो अप्लाई करें, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी, हम ये कहते हैं ओपन सोर्स है तो हमें क्या फ़ायदा, तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स, ओपन सोर्स चीज़ें। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम भी तो यूज़ तो कर रहे हैं, अगर ये वाला टूल नहीं तो कोई और टूल तो यूज़ कर ही रहे होंगे जो ओपन सोर्स होगा। तो आई थिंक इट सेंस एक सेंस ऑफ जो है ना ओपन सोर्स कम्युनिटी हमें वी शुड एनहांस एंड जो है ना उसको जो लोगों में बताना चाहिए हमें। तो ये आप लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी क्या अप्लाई करें, सेकंड वालों को, इवन C++ तो आती ही होती है फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स वालों को, तो C++ के इतने वो आते हैं तो वो उसमें अप्लाई करें। आई मीन इवन इफ यू फेल एट द एंड ऑफ द डे यू हैव एन एक्सपीरियंस टू, कि आपने अप्लाई तो किया। अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता कि मेरा नाम नहीं आना या मेरा नहीं होना, मैं अप्लाई ना करता, तो आई वुड प्रोबेबली, तो आज मैं यहाँ पे ना होता। तो आई थिंक कि अप्लाई करना इज द फर्स्ट स्टेप, अप्लाई करना, बाकी आगे होना ना होना इट्स समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड, सो वी शुड पुट आवर बेस्ट और डेफिनेटली अप्लाई फॉर GSoC। आई वुड प्रॉबेबली रिकमेंड कि हर बंदा करे जो भी सॉफ्टवेयर में है, AI में है, क्योंकि इस दफ़ा AI के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। उनकी मेल्स आई थी, तो AI सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सारे सारे डाइवर्स प्रोजेक्ट्स हैं। इवन डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप इफ़ यू लाइक मोर इनटू डॉक्यूमेंटेशन, so you can even do that as well. So yeah, that's from my side. I hope I wasn't boring to you guys. थैंक यू सो मच मुसाब, आपने तो मुझे भी मोटिवेट कर दिया। आई थिंक अभी भी अब सोचूंगी अप्लाई करने का। Yeah, definitely. आई थिंक अब अहमद की तरफ चलते हैं। अहमद, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Yeah, can you hear and see my screen? यस। Okay, so hello everyone. मैं बिलाल हूँ. I am currently a founding engineer at Language. Language एक AI platform company है from United States. और previously मैं developer relations में था Rapid API में, which is this huge API company. और इसका लोगो भी पड़ा है मेरे पीछे शेल्फ में. तो 2018 में मैं UET लाहौर से कंप्यूटर साइंस के में एडमिशन लिया था मैंने. एंड इन माय फ्रेशमैन ईयर 2019 में मैंने गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन नेम क्रिएटिव कॉमन्स. 3 महीने की, जैसे मुसब ने आपको बताया, 3 महीने की इंटर्नशिप थी. एंड इट बेसिकली सेट अप माय करियर. और मैं आज आपको एज समवन जो 2-3 साल इंडस्ट्री में रह चुका है, आप लोगों के आगे मैं आप लोगों को बेसिकली मोटिवेट करने आया हूँ कि क्यों आपको ओपन सोर्स और देन गूगल समर ऑफ कोड में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है और कैसे ये आपको बेनिफिट दे सकता है. तो आई एम अ ह्यूज ओपन सोर्स एडवोकेट. आई थिंक कि मैं अपना करियर वो करता हूँ ओपन सोर्स पे. तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मी, or if you want to ask any questions, or if you want any help, you can reach out to me through these handles. So coming into the details, अब open source और this GSoC क्यों जरूरी है. अब मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन टिल डेट. और मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ. आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएट करना है ऑफ कोर्स, तो यू हैव टू चूज द इंडस्ट्री जिसमें आप जाना चाहते हैं. अब 2 तरह की इंडस्ट्रीज हैं. एक लोकल इंडस्ट्री है और एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री है. लोकल में इस्लामाबाद में you must know about a lot of these software companies, DevSync, Affinity and others. अब लोकल में क्या सैलरी पैकेज है फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट? 80,000 for an average graduate, and it goes up to 180 if you are really bright. Versus international industry. Now, जब मैं इंटरनेशनल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने जिस तरह सुना होगा कि some of your fellow works at a remote job. तो बेसिकली आप किसी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी से या किसी यूरोपियन कंपनी से पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली फुल टाइम काम करते हैं.
तो when it comes to international industry, there is absolutely no comparison. ठीक है. Not only the salary, but you get a really nice workplace environment. You learn a lot. You have higher chances of growth, or obviously, like Musab said, money is always a factor. और अगर मैं बात करूं रिमोट जॉब्स की, तो यू विल एटलीस्ट गेट $1,000 पर मंथ. ठीक है. तो अब ये दो इंडस्ट्रीज हैं. यू कैन नॉट चूज बोथ ऑफ देम. यू टुडे यू हैव टू चूज कि आपने लोकल में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है. दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. अब मैं ना, मेरा एक्सपीरियंस रिमोट जॉब्स में है. लाइक आई सेड, मैं दो कंपनीज रिसेंटली में काम कर चुका हूँ रिमोटली. और एक्चुअली ग्रेजुएशन से पहले ही आई वाज लकी इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे एक रिमोट जॉब मिल गई थी. उसके बाद मैं रैपिड एपीआई में गया, दैट वाज आल्सो रिमोट. और टुडे आई एम वर्किंग एट लैंग्वेज. तो हाउ डू यू गेट अ रिमोट जॉब? दिस इज वेयर ओपन सोर्स एंड GSoC कम इन. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट दिस, कि अगर आप किसी रिमोट जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, व्हाट वुड यू शेयर? कि मैंने ना से ग्रेजुएट किया, ओके, एवरीवन डज दैट. मैंने ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट किया था, मैंने ये FIP किया था, एवरीवन डज दैट. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? अगेन, गेटिंग अ रिमोट जॉब इज रियली डिफिकल्ट. अब लोकल इंडस्ट्री में क्या होता है, योर कंपटीशन इज लोकल. आपका कंपटीशन इस्लामाबाद से है, पंजाब से है, या पाकिस्तान से है. इंटरनेशनली किसी रिमोट जॉब में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है. क्योंकि जो कंपनी पाकिस्तान में हायर कर सकती है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकती है. तो इट्स एक्सट्रीमली टफ. लेकिन लाइक आई सेड, उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है. और आपने आज से ही, इफ़ यू वांना ग्रो योर करियर 10 times as compared to local career, so you have to focus on open source and GSoC. अब ओपन सोर्स जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी जो आपको अपॉर्चुनिटी है, वो GSoC दे रहा है. क्यों? ये आपको ओपन सोर्स सिखा भी देगा, आपका ओपन सोर्स पोर्टफोलियो बन जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा आपका गिटहब पे. सेकेंडली, आपका एक क्लेम हो जाएगा कि आपने रिमोटली कमिटमेंट दिखाई है, 3 महीने तक आपने किसी बड़ी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है, और आपने प्रूव किया है कि आप you have the skills to work and you can show commitment. तो जब आप किसी रिमोट जॉब के इंटरव्यू में जाएंगे, एंड इफ यू शेयर कि GSoC में आपने काम किया था, यू हैव सो मच टू टॉक अबाउट. ठीक है. दैट विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ राइट देयर एंड देन. तो आई होप कि मैंने आपको काफ़ी मोटिवेट कर दिया है. नाउ लेट्स कम टू some tips that I want to share as someone who has experienced GSoC. Let me share my work report. ओके. तो मैंने 2019 में क्रिएटिव कॉमन्स का एक प्रोजेक्ट किया था. इट वाज अ वर्डप्रेस प्लगइन दैट यूज PHP एंड जावास्क्रिप्ट. ये उसकी वर्क रिपोर्ट थी जो मैंने प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कंपाइल की थी. इसमें आप देख सकते हैं कि आई वाज एबल टू अचीव दीज डिलीवरेबल्स. ये उसकी रेफरेंसेस हैं, द रिपोजिटरी. आई वाज एबल टू रिलीज 4, मैंने उसके प्रोडक्शन वर्जन्स रिलीज किए थे, जो उस वक्त मोर देन 1,000 वेबसाइट्स वर यूजिंग. और आप कमिट्स देख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट एंड फाइनल नोट. लाइक आई सेड, इट हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और तब मैं 18 ईयर्स ओल्ड का था. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी क्या ग्रोथ होती है एज एन 18 ईयर्स ओल्ड, जब आप किसी US कंपनी के साथ, बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ, एक्सट्रीमली गुड मेंटर्स के साथ काम करते हैं, जो ना सिर्फ आपको सिखाते हैं, बल्कि आपको ये भी पता चलता है कि आपने जब ग्रेजुएट होना है और जॉब करनी है, व्हाट डज इट लुक लाइक, क्या डे टू डे काम होते हैं, किस तरह आपने जॉब करनी है. एंड द नेक्स्ट ईयर 2020 में उन्होंने मुझे एज अ मेंटोर रख लिया था क्रिएटिव कॉमन्स ने. एंड दे आस्क्ड मी टू हेल्प देम सेलेक्ट देयर नेक्स्ट कैंडिडेट, which was this guy right here. So from the experience of being a mentor, मैं आपको कुछ
मज़ीद टिप्स देना चाहूँगा। नाउ GSoC का एक और फ़ायदा ये है कि कोई आपका वीडियो इंटरव्यू नहीं होता। तो ऑल यू हैव टू शो इज़ योर प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो आपकी सिलेक्शन 100% डिपेंड्स ऑन हाउ गुड ऑफ अ प्रपोजल यू राइट। और इसमें मुसब ने भी आपसे बहुत अच्छी टिप्स और इंसाइट्स शेयर की हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा, कुछ 2-3 चीज़ें जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी इसमें। नाउ आई होप यू कैन सी माई प्रपोजल ऑन द स्क्रीन। इसमें मैंने एक समरी दी शुरू में, और वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, इसमें आप क्या बताएंगे कि आपने क्या क्या डिलीवर करना है इन शेप ऑफ फीचर्स, और इसका आपका सिंटैक्स और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस तरह का। नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्टार मेथड। ठीक है, आप पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर आप बताते हैं उसमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, और फिर आप बताते हैं कि आप क्या स्टेप्स लेंगे, एंड फाइनली आप जो रिजल्ट उस चीज़ का निकलेगा वो बताते हैं। दिस कॉल्ड द स्टार मेथड। यू शुड यूज दिस एवरीवेयर इन योर CV, resumes, and in your whole professional career, and I encourage you to use this in your proposal as well. तो आपने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान कंपाइल करना है, उसमें आपने सारे फीचर्स, उनकी डिटेल बतानी है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन में आपने बेसिकली ये दिखाना है कि आप 3 महीने में हर हफ्ते क्या कर रहे होंगे। दिस इज समथिंग अस मेंटोर्स लुक एट, ये देखने के लिए कि आपको वाकई आइडिया है कि किस तरह टाइम बॉक्स करना है अपने फीचर्स को। और दिस इज नॉट एज हार्ड। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लिया है तो टाइमलाइन बनाना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, आपने उनको बताना है कि आप कोई काम कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट में। आपने कोई या तो पुल रिक्वेस्ट करनी है, या आपने एटलीस्ट कोई ना कोई उनको डेमो देना है। अब पुल रिक्वेस्ट करना इज ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट। जो वहाँ के मेंटोर्स होते हैं उन पे बहुत रश आया होता है। इंडियन स्पेशली डोमिनेट करते हैं GSoC में, भरे पड़े होते हैं उनकी पुल रिक्वेस्ट। और ऑनेस्टली उसमें ज़्यादा आपने डरना नहीं है, क्योंकि मोस्टली लो क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट होती हैं उसमें। तो बट अगर आपने कोई कोड मर्ज करवा दिया है अपना, तो आप समझेंगे आपकी सिलेक्शन इज फाइनल। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़, मैं कूडोज कहना चाहूँगा FEMCodes को भी, क्योंकि उन्होंने ये सेशन बहुत अच्छे टाइम पे अरेंज करवाया है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन GSoC। ठीक है, यू विल बी अहेड ऑफ योर कंपटीशन, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं अप्रैल मार्च में, रश आता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ये करना है कि पुल रिक्वेस्ट मर्ज करने की कोशिश करनी है। कोई ना कोई कोड, कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम पहले प्रपोजल देने से पहले आपका फिक्स होना चाहिए। अगर वो नहीं होता, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, मेरे से भी नहीं हुआ था, तो मैंने क्या हैक लगाई, मैंने एक फीचर पे काम किया, बना लिया, छोटा सा फीचर था, और मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भेज दी। और एक्चुअली यहाँ पे मेरे जिफ भी की हुई अटैच, या इट स्टिल वर्क्स। तो एक डेमो के तौर पे मैंने उनको ये जिफ अटैच कर दी कि देखो मैं ये फीचर बना सकता हूँ। नाउ एज अ मेंटोर ये क्या बताता है कि आप एक्चुअली काम कर सकते हैं, आपने कोड बेस पढ़ी है, आपको कोड भी करना आता है, और दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव थिंग। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं, योर सिलेक्शन इज अप्रूव्ड अबाउट 90%। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक डेमो दिया, और नीचे या यहाँ पे मैंने एक और प्रॉब्लम का डेमो दिया हुआ है। मैं पुल रिक्वेस्ट मर्ज नहीं करवा सका था, लेकिन मैंने इस तरह की डेमो दे दी। और मज़े की बात, लकीली मेरे पास उस वक्त के मेंटोर्स के जो कमेंट्स थे वो अभी तक पड़े हैं। तो यू गाइस कैन सी दे आर सेइंग ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट प्रपोजल, आई लाइक योर कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच। होता ही है कि जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो मेंटोर्स रिव्यू करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उनको इंगेज करना है कमेंट्स में, जो वो बात कर रहे हैं आपने एक्सप्लेन करनी है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आई लाइक दिस फीचर, ओके, कुछ उनका फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल दिस। तो आपने उस फीडबैक को वेरी प्रॉम्प्टली लेना है, रिस्पेक्टफुली आपने उनको डील करना है और चेंज कर देना है।
जैसे वो कह रहे हैं उनकी बात सुनी और चेंज करना है। तो मैंने यही किया, और एंड में आई आस्क्ड हिम अगेन कि अब ठीक है, एंड ही सेइंग आई थिंक योर प्रपोजल इज गुड इनफ। तो दिस इज अ साइन कि यार हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने उनसे निकलवा लेनी है। तो दिस वाज अ लिटिल ओवरव्यू। कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, these are some useful links. अब these you can check out the program site and other guides. मैंने अपनी वर्क रिपोर्ट भी यहाँ पे लिंक कर दी है। अब अगर आपने डिटेल देखनी है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है, किस तरह करना है, तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो गाइड है बाय दिस गाय कॉल्ड हरकिरत सिंह। तो डू चेक इट आउट। और फाइनली मैं एक फाइनली मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि मेरे जब मैं सेलेक्ट हुआ था 2019 में, तो सिर्फ 5 पाकिस्तानी थे, ठीक है, और कोई 500 प्लस इंडियंस इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे। और तब से मैंने सोच लिया था कि यार इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव करना है। मैंने फिर अपनी यूनिवर्सिटी में भी काम किया, और लाहौर की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया टॉक्स देने 2020 में, 2021 में, और उसका मैंने खुद आउटकम देखा है। मेरी ही क्लास से जहाँ 5 पाकिस्तानी टोटल सेलेक्ट हो रहे थे, वहाँ मेरी ही क्लास से 3 बंदे सेलेक्ट हुए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग ये कर सकते हैं, मैं फर्स्ट ईयर में ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और लाइक आई सेड, इट विल शेप योर होल करियर, और ये आपके करियर को 10x कर सकता है। तो दैट वाज ऑल फॉर मी, और फाइनली वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। अब आपने मेरे और मुझसे का टाइम का कैसे फ़ायदा उठाना है, मैं थोड़ा सा उसको गाइड कर दूँ। एनी क्वेश्चन, एनी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम गूगल और यूट्यूब, गेट इट फ्रॉम गूगल। आपने ये नहीं करना कि मुझ सबको जाके कहो कि यार व्हाट इज GSoC, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है, आपने हमसे वो चीज़ें पूछती हैं जो गूगल आपको नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल, आपने शॉर्टलिस्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन, आपने हमें रीच आउट करना है कि यार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ठीक रहेगी, दैट वी कैन गाइड यू, गूगल आपको नहीं बता सकता। फिर जब आप प्रपोजल की फर्स्ट कॉपी बना लें, रीच आउट टू अस, टेल आस्क अस टू प्रूफ रीड इट, मेक improvements, suggest improvements. That is the single most important thing. तो इफ़ यू डू दिस, और अगर आप आज से ही इसमें एक्टिव हो जाते हैं, बेशक आपको ओपन सोर्स का नहीं भी पता, आई वुड हाईली रिकमेंड, कोई बात नहीं, ओपन सोर्स सीखें, और इस साल वैसे ही ट्राई करने के लिए GSoC में अप्लाई करना है। नेक्स्ट ईयर यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आई आई होप दिस वाज यूजफुल। that was all by my side, and now is the time for your questions. Ask away. Over to you, Kamal. थैंक यू सो मच अहमद। और आई थिंक आप सबके लिए भी है कि अहमद ने एज ए मेंटोर भी काम किया हुआ है, तो उसने आप लोग को सिर्फ अपने एस्पेक्ट से एज ए स्टूडेंट नहीं बल्कि एज ए मेंटोर भी बताया कि मेंटोर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों जो है वो आप देखते हैं। सो बिफोर वी कैन टेक द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग, हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट किए थे फ्रॉम द गूगल फॉर्म्स, तो आई आस्क देम वन बाय वन, अहमद आपसे एंड देन मुझसे आपसे, एंड व्हेन वी आर डन विद दोस्त तो तब हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे एंड फिर आप जो है वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So the first question is for Ahmed. It's not related to GSoC, but एक general question हमारे पास आया था कि whenever I try to learn programming, तो learning curve जो है वो काफ़ी steep होता है. For example, lead code के questions अगर मैं solve करता हूँ, so the statements are really complex, और actual implementation उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है. So is there any way जिसमें जो है वो minimal sudden jumps of difficulty हो instead of this steep learning? तो आई Okay. थिंक आप एक्सपीरियंस्ड है, आप काम भी कर चुके हैं, तो आई थिंक यू Okay. कैन बेटर गाइड। एज अ बिगनर आप लीड कोड पे क्यों जा रहे हैं? लीड कोड इट्स टफ, ठीक है। लीड कोड इज टफ फॉर एवरीवन, इट इज टफ फॉर इवन मी, ठीक है। तो स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, बेसिक शुरू करें। अ वेरी गुड रिसोर्स इज ओपन सोर्स रोड मैप, what was it called? I will share it in the chat. तो that is a very good resource। अगर आप वेब में शुरू करने वाले हैं तो they ask, what they do is कि वो smaller units में divide कर देते हैं, we solve those questions and you go by that। और उसके बाद जो second
आई थिंक ओवरऑल जो मैंने यूज़ किया है अपने लर्निंग कर्व्स को बेहतर करने के लिए, वो ये है कि प्रोजेक्ट से सीखो। ठीक है, डोंट रिलाई ऑन कोर्सेज। कोई प्रोजेक्ट पकड़ो, कि यूट्यूब वीडियो पकड़ लो या कोई भी चीज़, और उस प्रोजेक्ट को पहले फीचर देखो और फिर उस फीचर को ढूंढो कि ये फीचर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो देखो। दैट्स हाउ यू लर्न। प्रोजेक्ट्स बना के लर्न करो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विल हेल्प यू इन योर प्रोग्रामिंग करियर, और एनी वन कैन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं कि हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ये सारे ग्रेजुएशन के बाद बैठे होंगे और प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। तो अभी से कर लो तो आपके करियर में दिस विल हेल्प यू अलॉट। आई होप दैट हेल्प। थैंक यू सो मच अहमद। मुझसे आपके लिए एक क्वेश्चन जो आई गेस एड्रेस नहीं किया गया, कि इफ देयर समवन जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या सीएस के बैकग्राउंड से नहीं है, बट दे हैव गुड कमांड ऑन प्रोग्रामिंग एंड स्टफ, सो कैन दे अप्लाई फॉर जीसॉक? एनीवन हु इज स्टडिंग वो अप्लाई कर सकता है। तो इट्स ये इस चीज से आई डोंट थिंक दे हैव, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स कर रहा हूँ, ये मैंने प्रपोजल में लिखा ही नहीं था कि मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। सो दे डोंट केयर अबाउट माय क्वालिफिकेशंस, उनको फर्क ही नहीं पड़ता मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एआई में कर रहा हूँ, जिसमें भी कर रहा हूँ। ये चीज तो मैंने मेंशन भी नहीं की थी अपने प्रपोजल में। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह कर रहे हैं। जैसे बिलाल भाई ने बताया कि मतलब प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह कर रहे हैं, आपने प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई भी किया है कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो मांग क्या रहे हैं, और उसके बाद आपने जो सोल्यूशन बेस जो सोल्यूशन दिया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। दिस इज व्हाट एक्चुअली काउंट्स। बाकी ना तो आप बेशक जो है ना, आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपको कोडिंग अच्छी आती है, आपका मूड है, तो आप मतलब आपका वो है प्लान, तो करें। इस आपकी डिग्री का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ओके, थैंक यू सो मच। अहमद, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, कि जब हम लोग जो है प्रोफेशनली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह में काम करते हैं, सो इज द वर्क बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन या मोस्टली इंडिविजुअल वर्क होता है, किस टाइप का होता है, एंड यू नो नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट अ सर्टेन टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी अपने स्टूडेंट लाइफ में कि क्या कैसे क्या होता होगा डे टू डे जॉब्स, और दिस इज व्हाई यू नीड टू डू जी सॉक। इससे आपको पता चलेगा कि क्या जॉब होती है और किस तरह करते हैं उसको। आई थिंक बेसिकली बहुत बेसिक टर्म्स में अगर डिफाइन करूँ ना, तो रोज़ाना कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और रोज़ाना आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिगर आउट करना होता है। दिस इज कंप्यूटर साइंस। तो इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पहले से हर मसले का उसको सॉल्यूशन ऑन हिज फिंगर टिप्स पता हो। तो फिगरिंग आउट solutions to problems is a very good skill that you should learn right now, and you will also learn when you grow. थैंक यू अहमद। सो मुझे आपके लिए क्वेश्चन है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग एक्चुअली दिस क्वेश्चन, कि हमारा जीपीए जो है वो काफ़ी कम है, सो इस जीपीए फैक्टर जो कि जीसॉक में सिलेक्शन का लाइक क्राइटेरिया बन सकते हैं या नहीं? नहीं जी, वही मैंने कहा, जो आपकी डिग्री है, आपका एजुकेशन है, और जो आपका जीपी है, ये तो वैसे इंडस्ट्री में भी इन होल नहीं करता जीपीए। वो एक अदर डिबेट है कि जस्ट डज जीपीए मैटर और नॉट, मगर फॉर प्रपोजल बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो ये चीज पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि हमारा हमारा जीपीए अगर मैं लिख भी दूं कि 3.6 है, व्हाई वुड दे केयर कि मतलब मेरा जीपीए 4 भी हो, तो क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम प्रॉपरली आइडेंटिफाई हुई भी है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन है। जैसे मैं अपने प्रपोजल में आपको बता रहा हूँ कि उनको ये था कि आप पेन टेस्टिंग और वेब सिक्योरिटी की वो थी, तो अब मैंने पेन टेस्टिंग करके एक वनरेबिलिटी निकाल ली है। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली काउंट्स। वहां पे मैं लिखता रहूं, मैं तो बैचलर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, मैंने इतने कोर्सेज पढ़ लिए, तो वो चीज काउंट नहीं होती ना जीपीए। Yeah, to extend it, they don't even ask about your degree, तो मैटर ही नहीं करता। हाँ, अगर यस। आपका अच्छा जीपी है और आप सीएस कर रहे हो तो मेंशन कर दो, अगर नहीं है तो डोंट मेंशन इट। सिंपल। थैंक यू मुस्तफा बिन अहमद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर द प्रोजेक्ट सोनली बेस्ड ऑन लाइक द सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बट या तो हम लोग हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है दैट वी कैन टेक, जैसे आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गए इस टाइप के? आई थिंक आई इट्स थिंक इम्पोर्टेंट फॉर पीपल फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। आई वुड से चेक इट आउट। ठीक है, हो सकता है कोई इस तरह का आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, कोई इस तरह का प्रपोजल मिल जाए जिसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो। आई नो मैनी
ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वेरी C++ हैवी, और अक्सर उनमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, तो चेक करें। Yes, I would add to it. तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, जैसे IoT में आई थिंक क्वांटिकी आई थिंक है जो सिमुलेशंस वगैरह के लिए, आई थिंक उसमें काम हो जाएगा। मगर एज सच ऑब्वियसली रिमोट बेस्ड वर्क है तो हार्डवेयर उस तरह तो मुश्किल हो जाएगा, मगर ऑब्वियसली जो सिमुलेशंस एंड एवरीथिंग वो चीज़ तो आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं। मगर वो तो आपको पता है रिमोट काम है तो हार्डवेयर तो उस तरह एक्टिवली तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। Okay, thank you. So the next question is from 2 to 3 game developers. वो they have this concern कि उन्हें इतने ज़्यादा online लोग नहीं मिले जो कि game development के background से थे and they are into the GSoC. So if you guys have any idea about that, तो कौन सी organizations है या game developers भी कर सकते हैं? So any insights on this thing? आई डोंट, वैसे मैंने क्योंकि मैंने अपनी बड़ी पर्सनलाइज सर्च की थी उस टाइम पे फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, तो मैंने उस टाइम पे कोई गेम डेवलपमेंट स्पेसिफिक नहीं देखा, मगर इसमें वी कैन लुक इनटू इट कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कर रही होगी इसमें, मगर एट दिस पर्टिकुलर टाइम मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अपनी सर्च बड़ी अपने स्पेसिफिक रखी थी। या आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि थी ऑर्गेनाइजेशन जो गेम डेवलपमेंट कर रही थी, और लाइक आई सेड आप इसमें ये कर सकते हैं कि पिछले साल की ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हैं, उसमें सिंपली आप अपनी टेक्नोलॉजी डालें, अपनी जॉनर डालें, गेम डेवलपमेंट डालें, एंड यू विल फाइंड आउट मोस्टली जो पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं वही इस साल भी आ रही होंगी, तो इट्स यस इट्स इट्स अ प्रैक्टिस यू शुड डू एनीवे। यस 2023 की ऑर्गेनाइजेशंस को गो लुक इट अप और वहाँ पे गेम डेवलपमेंट का देखें तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक ऑलमोस्ट 80 to 85% और टिल 90% ऑर्गेनाइजेशंस रिपीट ही होंगी। या और यही चीज़ जो है ना इस वीडियो गाइड में बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको देखें। Okay, thank you so much. अब लास्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू अगेन जीसॉक बट एक जनरल करियर गाइडेंस से रिलेटेड था एंड काफी लंबा वो सवाल आया है तो आई थॉट के पूछ लेना चाहिए. So the question is that there's someone who is interested in digital electronics, embedded systems and machine learning और उन्हें ये है कि उन्हें किसी एक फील्ड को इन तीनों में से चूज करके उसके साथ आगे जाने में मसला है. दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल थ्री ऑफ देम और ऑल थ्री ऑफ देम उन्होंने साइमल्टेनियसली सीखना भी शुरू कर दी है बट अनफॉर्चुनेटली दे आर सेइंग दैट दे फेल टू डू सो. So any advice guys have for this particular person? पर्सनली आई थिंक जो सारी चीज़ें इकट्ठे चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सनली फॉर मी आई थिंक कि जो तीनों चीज़ें, सो आप ये कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे कि आप तीनों में से प्रोजेक्ट्स कर लें. जैसे बिलाल भाई ने कहा था कि प्रोजेक्ट करना, तो तीनों जो डोमेन्स आप करना चाह रहे हैं उसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करें. कोई एक तो होगा जो कि विच वुड ऑब्वियसली हैव एन अपर हैंड ऑन अदर टू. इस तरह तीनों को इकट्ठे लेके चलना, तीनों में इकट्ठे काम करना, अनडिवाइडेड अटेंशन तीनों पे देना, आई डोंट थिंक, मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट ह्यूमनली थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है बिकॉज तो. और embedded system is a whole other domain, ML is a like whole other domain. Obviously niches वहाँ पे combine हो सकती हैं, मगर in general these are like very different domains. So I think it's better to focus on one and to be great at it rather than जो है ना तीन में आप करें and be not good at all three of them. This is my personal opinion. या आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं। इफ़ यू आर इन योर फ्रेशमैन ईयर या आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है, ओके, एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर आप सीनियर ईयर फाइनल ईयर में हैं तो यू डोंट हैव मच टाइम, तो यू शुड डिसाइड वन थिंग। और हाउ कैन यू डिसाइड, अगेन प्रोजेक्ट्स करके, जैसे मुझे ने कहा। क्योंकि आखिरी ईयर में आपके पास इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप इतना जो है ना सारी चीज़ें करें, तो इट्स बेटर कि आपको शो कि आप अभी से प्रोजेक्ट्स करें, एम्बेडेड सिस्टम्स के प्रोजेक्ट करें, एमएल के प्रोजेक्ट्स करें. कुछ एक होगा जो विच विल प्रोबेबली स्टैंड आउट और जो आपको लगेगा कि वो आपको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑल थ्री साइमल्टेनियसली चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. I agree. Or I think we are done with the questions that I gathered from the form. But I have one personal question कि जो proposal एक साल में आप एक ही proposal submit कर सकते हैं या you can submit more than one proposals मोर देन for वन different यू कैन सबमिट. organizations? पिछले टाइम तक तो था आई थिंक कि आप काफ़ी प्रपोजल्स कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं सेट थी लास्ट ईयर तक, तो आप प्रपोजल
बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक या मैक्सिमम दो पे फोकस करें, Yeah. क्योंकि इट्स वेरी टफ टू सबमिट 3 गुड प्रपोजल्स, Yes, I टू agree. उस पे अपनी पूरी जान लगा दें। यस आई एग्री कि आप जो आपके प्रोजेक्ट्स 2 एट मैक्स या 3 हद मार के, तो विच यू लाइक, तो उस पे करें। 5-7 करने से ये होगा कि क्वालिटी, तो आप इतने 7 प्रपोजल्स, आप आई डोंट थिंक कि क्वालिटी प्रपोजल्स आप लिख पाएंगे। इट्स बेटर कि 2 से एट मैक्स 3 पे जाएं, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच मुसब एंड अहमद। आई थिंक अब जो अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं। आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और आप लोग अब माइक जो है वो अनम्यूट करके आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, और यू कैन जस्ट टाइप इन एंड मैं जो है वो उनको बता दूंगी आपके क्वेश्चंस। श्योर। मुसब, कैन रीसेंट ग्रेजुएट्स अप्लाई? No, I think everyone, you have to be enrolled in a degree for this. Like आप bachelor's कर रहे हो, master's कर रहे हो, PhD कर रहे हो, you have